Banach fixed point theorem and the Baire category theorem. These are two of the very important theorems in the metric space theory, and you will see a lot of questions in TIFR, right, from these two theorems. Okay, there are four theorems I told you in the last class. So I will prove two of the theorems here, and will also put some of the questions. Okay, and I will also add some of the questions in the assignment, and I will share the assignment later in the class. And one thing I want to point it out, that if some question pops up when you are watching this recording, then please feel free to comment it with the mentioned timing, and I will address all of your questions in the next live class. Okay, so let's get started. So first of all, in the last class, I had given you two questions, right? That this metric on n is complete or not, and this metric on R is complete or not. Both of these matrices are not complete. The reason is very simple. See, if you take the sequence xn equal to n here, right? Then you see that d 1 minus m, 1 minus n. Because this, we want this tends to 0 as m comma n tends to infinity, right? And this tends, because we know that in the usual metric space R with respect to usual metric, this 1 by m is a Cauchy sequence, so this converts. Okay, but it does not have a limit. Okay, why? Because say that your xn converts, okay, to some point 1 by, you can say 2 point L, but 1 by n. So this sequence must to go to 0. But when this go to 0, when L is 0, right? But you cannot get 0 here for any point. Why? Because in the end, because you have the natural number, say, then, ओके, सो मान लेते हैं जैसे डीएम ये एक्स पे कन्वर्ट करती है, ओके, सो एल पे कन्वर्ट करती है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 1 बाई एल लिखना चाहिए था मुझे, एल, तो ये ऐसा होगा, राइट? एंड दिस गोज टू 0, बट 1 बाई एल इज देन 0, बिकॉज 1 बाई एम कन्वर्ट्स टू 0, राइट? यहाँ पे एल है, तो लेकिन ये फिर ऐसा तो होता नहीं किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, तो ये गलत है। और ठीक ऐसा ही रीजन इस वाले का भी है, वो आपके लिए अभी भी होमवर्क है, और असाइनमेंट में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा और प्रॉपर सॉल्यूशन भी लिखूंगा, ठीक है, अगले वाले असाइनमेंट में, असाइनमेंट 4 में। ठीक, तो आज ये दो थ्योरम्स पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर 9 पॉइंट डेफिनेशन। ओके, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। मैपिंग, सो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होती है? ओके, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग? सो इट्स डेफिनेशन 9.1। सपोज xd and yd dash be two metric spaces, a map, let's denote it by t. Okay, a map t from x to y is said to be contraction, or a contracted or a contraction map. So contraction, if there is a c, if there is a c between 0 to 1, such that this happens, what? The distance between functional values of x and y is less than or equal to c distance of x and y. Okay, so this is the definition of contraction map. For example, like this, just x goes to x by 2, it is a contraction, okay, in R, the metric space is R, x की जगह पे भी r है और y की जगह पे भी r है। तो अगर आप ये मैप लेते हैं, या फिर कोई भी ऐसा मैप लेते हैं जिसमें 1/2 की जगह कोई भी रियल नंबर है जो लेस देन 1 है, तो आप देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्शन मैप है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन मैप अगर देखें, फंक्शनल वैल्यूज की डिस्टेंस देखें, x माइनस 2, y माइनस 2, दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1/2 distance between x and y, right? So this is a contraction map। यहाँ पे लेस और इक्वल, ओके, सो इक्वल भी हो सकता है। So here is a little exercise for you.
suppose f01 to 01 be a differentiable function, be a differentiable function and f dash x mod of f dash x is less than or equal to r, where r is strictly less than 1. Okay, and this happens for all x in closed interval ab. Prove or disprove that f is a contraction mapping. सो ये होमवर्क है, ये कल चेक करूंगा मैं, ठीक है। सो नाउ अब आते हैं बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम पे। 9.2 बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपके अगर मेट्रिक स्पेस का कोर्स है आपका, तो बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ भी बहुत आसान है और बिल्कुल ध्यान में रखने योग्य है, ठीक है। तो कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है प्रूफ, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, कैसे मैं आपको बताऊंगा, बस एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और प्रूफ कैसे ध्यान में रहेगा वो भी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे करूंगा। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम? द स्टेटमेंट इज दैट लेट XD be a metric space, okay? That is always. So Tx to X be a contraction map, then that is, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, that is there exists a C between, okay, so C can be 0 also, okay? यहाँ मैंने ऊपर ये लिख दिया, so in the definition one can take C to be 0 also. Okay, give me 1 minute. Okay, so I was just checking that कि देखो जीरो पे कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। ओके, कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ मिल भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर जीरो आ गया सो दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, फिर टी एक्स जीरो मैप ही हो जाएगा। ओके, सो सी इज नॉट जीरो हेयर, ओके, इन दिस एटलीस्ट। तो मैंने कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन में भी उसको नहीं लिया है, तो देखो फिर उस केस में जीरो हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ सी बिटवीन 0 1 सच दैट डी ऑफ, अभी यहाँ डी ही आएगा क्योंकि मेट्रिक स्पेस एक ही है हमारा, dx dy is less than c dxy. Okay, this happens for all xy in x. Then t has a unique fixed point. चलिए, इसका प्रूफ करने से पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। एक टीआईएफआर में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इसी बार आया हुआ है, देखिए। हाँ, और यहाँ पे मैंने बोला ना एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, ये आप खुद मानेंगे एक्स डी बी ए मेट्रिक, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, बस कंप्लीट ऐड करना है, ठीक है। कंप्लीट मेट्रिक स्पेस असाइनमेंट, सॉरी, स्टेटमेंट में जब भी मैं नहीं लिखूंगा एक्स के बारे में, वो तो आप अज्यूम कर ही लेंगे एक्स बी बी ए मेट्रिक स्पेस, तो यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे लेट एक्स बी बी ए कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। ओके, सो अगर आपके पास कोई भी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है और यू हैव अ मैप x to x, right, which is contraction, then it will have a unique fixed point theorem. This is the Banach fixed point theorem. Okay, so एक TFR का क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर इसका प्रूफ करेंगे। चलिए देखिए, प्रूफ आसान है।
ओके, ये आपका टीएफआर का क्वेश्चन आया हुआ है। सॉल्यूशन क्या कहता है? लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक, बी अ नॉन एम्प्टी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एंड टी एक्स टू एक्स बी अ कंटिन्यूअस मैप सच दैट टी स्क्वायर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। हमें टी कॉन्ट्रैक्शन दिया है, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है, टी स्क्वायर एक कॉन्ट्रैक्शन है ऐसा बोला है। देयर इज, दैट इज देयर इज अल्फा लेस देन वन, ओके, a less than 1 such that for all distinct x comma y we have d t square x t square y is strictly less than a dxy। अब यहां ऐसा लिखा नहीं है, ओके, ये अपने आप फॉलो होता है, राइट, कि a इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्ट साइन दिया है, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये कभी जीरो हो नहीं सकता, राइट, मतलब जीरो से छोटी डिस्टेंस कभी होती नहीं है, ओके, इसलिए, और a ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। सो then there exists a unique element x such that tx equal to x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टी स्क्वायर आपका कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन ये बोल रहा है कि टी के पास यूनिक फिक्स पॉइंट होगा, तो ये बिल्कुल बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम नहीं है, ओके, अलग है। चलिए दिया क्या है? सो सिंस इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? टी स्क्वायर इज कॉन्ट्रैक्शन, राइट, इज अ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, सो बाय बाय बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम, और ये इसी बार आया हुआ क्वेश्चन है 2025 में, ओके, बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम कंप्लीट भी बोला है, देखिए। सो बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स, ओके, वी शुड राइट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक x belongs to x such that t square x इक्वल टू x। ठीक है, ये हमारे पास आया, और हमें क्या दिखाना है? प्रूव या डिस्प्रूव करना है, ओके, दिस इज ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन कि टी के पास फिक्स पॉइंट होगा। यहां से अगर हम दोनों तरफ टी अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? टी टी स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स, राइट, सॉरी इस तरफ भी टी आएगा, टी एक्स, और इसका मतलब क्या हुआ? टी स्क्वायर टी एक्स, राइट, इक्वल टू टी एक्स। दिस मीन्स tx is also fixed point because t square tx को भी फिक्स कर रहा है। सो बाय यूनिकनेस, क्योंकि फिक्स पॉइंट तो यूनिक है, इसलिए बाय यूनिकनेस tx इक्वल टू x। तो इसका मतलब x फिक्स पॉइंट था टी स्क्वायर का, tx भी फिक्स पॉइंट था, तो इसका मतलब दोनों एक होनी चाहिए। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, हमने t का फिक्स पॉइंट ढूंढ लिया है, लेकिन हमें ये भी प्रूव करना होगा कि दिस इज द ओनली फिक्स पॉइंट ऑफ t, ओके, so this has to be proved also, okay। So see, अगर if y belongs to x such that dy equal to y ऐसे है, तो फिर हमारे पास क्या होगा? देखो, टी स्क्वायर दोनों तरफ अप्लाई करोगे तो जो जिसको टी फिक्स करेगा उसको सारी टी की पावर फिक्स करती है, ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टी वाई इक्वल टू टी वाई दूसरी तरफ आएगा, बट टी वाई इक्वल टू हमने वाई लिया है, राइट, इस तरफ टी वाई आएगा, दोनों तरफ टी लगाएंगे तो उसको फिर वाई रख दीजिए। और बट बाई यूनिकनेस अगेन, बिकॉज टी का तो टी स्क्वायर का तो एक ही फिक्स पॉइंट है, राइट, यूनिकनेस ऑफ फिक्स पॉइंट ऑफ टी स्क्वायर, ऑफ टी स्क्वायर, ओके, सो इट मींस thus t has a यूनिक फिक्स पॉइंट। तो देखा आपने, क्वेश्चन सीधे थ्योरम्स नहीं आएगी एग्जाम में, ओके, थोड़ा सा उसका इधर उधर करके आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ओके। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हुआ। अब प्रूफ पे चलते हैं, और प्रूफ आसान है बिल्कुल आपके, ठीक है। देखिए कैसे समझेंगे प्रूफ को? तो प्रूफ ऐसे होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ मेन आइडिया क्या है प्रूफ का।
एक कोई भी रैंडम पॉइंट आप उठा लेते हैं पूरे स्पेस से, ठीक है। मान लीजिए आपने एक्स नॉट उठाया, एक्स नॉट कोई पॉइंट है, और फिर सीक्वेंस डिफाइन करते हैं इस तरीके की, टी एक्स वन, ये एक्स जीरो, फिर दूसरा टी स्क्वायर एक्स, यहाँ सॉरी टी स्क्वायर टी एक्स जीरो आएगा, यहाँ टी स्क्वायर एक्स जीरो, टी क्यूब एक्स जीरो, ये फिक्स, ये डिफाइन करते हैं, ओके। तो ये है कैसी, इसका मतलब ऐसा है, टी ऑफ एक्स एन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, राइट। एन प्लस वन टर्म में क्या है, सिर्फ टी अप्लाई करके लाया गया है पिछले वाले में, जैसे है ना ये टी स्क्वायर एक्स, जैसे इसका फोर्थ टर्म में देखेंगे तो क्या आ रहा है, दूसरे टर्म में टी अप्लाई करके, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये पॉइंट अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो फिक्स पॉइंट पे ही कन्वर्ज करेगी, इफ इट कन्वर्ट्स। द रीजन बिहाइंड दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ टी, वो मैं आप नीचे बोलूंगा, ओके। सो यही है प्रूफ की स्ट्रेटेजी, और ये सीक्वेंस क्या है, कॉची सीक्वेंस होगी, हम दिखाएंगे, और कॉची सीक्वेंस होगी तो फिर ये कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं उसका नाम एक्स है, क्योंकि कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है हमारा, यहीं पे कंप्लीटनेस काम में आएगी, ओके। कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, कोई भी कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, और वही पॉइंट फिक्स पॉइंट होगा, ऐसा हम दिखाएंगे। चलिए लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सो लेट एक्स नॉट बी अ फिक्स पॉइंट, फिक्स फिक्स पॉइंट का मतलब है कि, ओ राइट, फिक्स पॉइंट का मतलब ये ना समझे कि पॉइंट, चलो ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि फिक्स पॉइंट लिखूंगा तो आपको ये ना लगने लगे। फिक्स मीन्स एक ऐसा पॉइंट ले लिया मैंने, पहले से चुन लिया, ओके। सो लेट एक्स जीरो बी एक्स, डिफाइन डिफाइन एक्स एन प्लस वन इक्वल टू टी ऑफ एक्स एन, ओके, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड टी वन इक्वल टू क्या है, टी एक्स जीरो, ओके। सो डी ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू सी टू द पावर एन डी एक्स वाई आएगा, ठीक है। इसको कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन consecutive terms will be less than equal to c to the power n dx, x1 सॉरी नॉट x, यहाँ आएगा x1 x नॉट, कैसे आएगा देखो। सो यू कैन प्रूव इट बाय इंडक्शन, ओके, फॉलोज फ्रॉम इंडक्शन। पहले देखो वन के लिए ट्रू है, फिर टू के लिए, के एन के लिए ट्रू मानो, एन प्लस वन के लिए ट्रू करके देखो, देखो वैसे ऐसे है, जैसे मान लो आपके पास ये है, राइट। तो इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक्स एन प्लस वन क्या है आपका, टी एक्स एन है, राइट। We have this because t of xn and xn क्या है, t of xn minus वन, since t is contraction, अगर t contraction है तो क्या होगा देखो, इसको यूज करो, t x t y क्या होगा, लेस देन c d x y, राइट। यहाँ पे मैंने लेस देन एन इक्वल टू लिया था ना डेफिनेशन में, यहाँ लेस देन एन इक्वल टू है, ओके। सो ये क्या आएगा, लेस देन एन इक्वल टू, यहाँ एक c आ जाएगा, t, फिर डिस्टेंस बिटवीन, एक टी कम हो जाएगा फिर, राइट, क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस वन, फिर यू विल कीप ऑन गोइंग, राइट। तो आपके पास क्या आएगा, सी एन डी एक्स वन एक्स जीरो, ओके। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसका यूज करेंगे हम ये दिखाने में कि ये जो सीक्वेंस हमने डिफाइन की है ये कॉची सीक्वेंस है, ओके। सो चलिए, अब कॉची सीक्वेंस दिखाने के लिए हमें करना क्या होता है, व्हाट वी हैव टू डू टू शो अ सीक्वेंस इज कॉची, दैट वी पिक two points xm and x, sorry, not here, we show that this sequence, okay, this distance can be made less than epsilon, or
we after some stage, so 0 as m comma n tends to 0, राइट। यही तो हमें प्रूव करना होता है कौची सीक्वेंस दिखाने के लिए। तो चलिए करते हैं। अब जब भी आप m comma n लेंगे तो एक पॉइंट तो उनमें से बड़ा होगा। ओके, लेट सपोज मान लीजिए कि m ग्रेटर देन n है। ओके, सो देन तो m इक्वल टू n होगा तो फिर तो डिफरेंस 0 ही होगा, वो किसी भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। ओके, वी हैव, अब यहाँ पे एक मैंने आपको असाइनमेंट 1 में या 2 में एक इनइक्वलिटी दी थी, अगर आपको याद होगा तो देखो मैं आपको याद भी दिला देता हूँ, उसको याद रखने का तरीका भी बताया था। जैसे मान लीजिए आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, ऐसे ये पॉइंट है एक्स एम, ठीक है, यहाँ एक्स है, कौन सा पॉइंट ज्यादा है, एक्स एम, ठीक है। ये रियल नंबर में सोचो याद रखने के लिए इनइक्वलिटी। ओके, वो हमने प्रूव की थी। यहाँ से यहाँ जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे, राइट, ऐसे करके। तो फिर इसका नाम xn+1, xn+2, और ये वाला पॉइंट ऐसे करके xn+2, xn+3, राइट। ये अगर आपको याद होगा तो असाइनमेंट से रिकॉल करने के लिए ये मैंने आपको तरीका बताया था कि ये सारी डिस्टेंसेस ऐड करोगे तो ये डिस्टेंस क्या होगी, छोटी होगी, राइट। आई मीन टू से कि ये इससे लेस देन एन इक्वल टू होगा। तो ये याद करने का एक तरीका था। सो आपको याद आ गया होगा असाइनमेंट 2 से। सो दिस विल बी xn+1 प्लस d xn+1 xn+2 प्लस डॉट 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 d x m तक जाना है, राइट। हमने xm-1 एंड xm। तो अब इन सब में हमने देखा ना, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का अगर हमने डिस्टेंस निकालनी थी तो वो क्या थी, वो इसको सेटिस्फाई कर रही थी। तो इसको लिख देंगे हम लेस देन एन इक्वल टू c⁴n। ये c⁴n बाहर आ जाएगा सभी से, और अंदर क्या आएगा, नो सॉरी c⁴ नहीं, बल्कि क्या आता है देखते हैं। ओके, सो दिस इज c⁴n d x1 x0, एंड दूसरे में क्या आएगा, c⁴n+1 d x1 x0। ओके, डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा, c⁴m-1, राइट, m-1 d x1 x0, राइट। इसका यूज किया है जो हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया था। सो देन अब ये c⁴n कॉमन ले लो, d x1 x0 भी कॉमन ले लो, एंड अंदर क्या बचता है, 1 प्लस c डॉट 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 c m-1 माइनस n, राइट। ये हमारे पास बचता है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, लेस देन एन इक्वल टू c⁴n d x1 x0। थोड़ा सा एक मिनट देंगे, इसको मैं यहां कर लेता हूं। तो यहां क्या आ जाएगा, सम k गोज टू 0 to ∞ c⁴k, राइट। ये आपको पता होगा, है ना। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो मैंने उसका सुप्रीमम लिख दिया है, ठीक है। तो ये बड़ा होगा। ओके, इसलिए हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया है, c⁴n, और इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कितना होता है, x1 x0, ये सम होता है 1/1 माइनस सी, राइट। अब यहां देखेंगे ध्यान से, राइट, दिस टेंस टू 0, राइट, एच एन टेंस टू इन्फिनिटी। कैसे, क्योंकि ये नंबर क्या है, दिस नंबर लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। सो इट्स, ये जो c⁴n सीक्वेंस है ये 0 पे जाएगी और ये सारे कांस्टेंट है। ओके, तो ये ओवरऑल 0 पे जाएगी, लेकिन जैसे ही n 0 पे जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो m भी इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये देखिए, क्योंकि n से बड़ा है। तो इसलिए सो वी गेट d xm टेंस टू 0 h n टेंस टू इन्फिनिटी, m n टेंस टू इन्फिनिटी।
Okay, so this means Xn is a Cauchy sequence in X. By completeness, क्योंकि x तो कंप्लीट है, बाय कंप्लीटनेस ऑफ x इट विल कन्वर्ज टू सम पॉइंट, राइट? ये कन्वर्ज करेगी किसी न किसी पॉइंट को, लेट्स से इट x. ओके, सो xn converts to some point. Some point x. Okay, so up we saw that x is fixed point. Okay, we have what we have, see, limit xn equal to x, right? So this means limit xn is t of xn minus 1, right? This we have because we defined the sequence like this. यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन सीक्वेंस की, राइट? एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन. हाँ, ऐसी चीजें मैं लिखना भूल गया हूं तो कहीं पे आप लोग लिख लेंगे ऐसे, ठीक है? दिस ट्रू फॉर ऑल एन, राइट? सो मतलब डिटेल्स फिल कर लेना. अब यहाँ पे मेन पॉइंट काम आता है क्योंकि टी कंटिन्यूअस है, और जब भी कंटिन्यूअस होता है तो ये ध्यान रखना लिमिट अंदर जा सकती है. ओके, सो ये क्या आएगा? लिमिट एक्स एन माइनस वन इक्वल टू एक्स सिंस टी इज कंटिन्यूअस. अब ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूटी में मैं प्रूव करवाऊंगा. ओके, टी इज कंटिन्यूअस. तो इसका मतलब अब सब सीक्वेंस की भी वही लिमिट होती है जो सीक्वेंस की लिमिट होती है, तो टी एक्स इक्वल टू एक्स. एंड यूनिकनेस इज वेरी इजी. ओके, यूनिकनेस प्रूफ करना काफी आसान है. तो हमें एक फिक्स पॉइंट तो मिल गया. नाउ वी प्रूफ यूनिकनेस. सी, यूनिकनेस इज वेरी इजी. सो लेट कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x सच दैट टी एक्स इक्वल टू एक्स एंड टी वाई इक्वल टू वाई. ओके, सो अब हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे तो क्या आएगा? by given condition distance between tx and ty is less than equal to c distance between x and y. c, तो यहां से क्या आएगा? क्योंकि tx इक्वल टू x है तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड y. ओके, तो dxy must be 0, right? Yes or no? Less than and equal to 0. ओके, ये आएगा हमारे पास, है ना? सो dxy must be 0. y मस्ट बी जीरो. अगर ये जीरो नहीं होता है dx y, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है. c आपका ये है, देखिए, ठीक है? ऐसे समझिए इसको, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, आसान है. क्योंकि अगर ये नॉन जीरो है तो डिवाइड कर दो दोनों साइड, राइट? तो ये आएगा आपके पास, लेकिन ऐसा है नहीं. ओके, आई मीन दैट्स सिंपल, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. सो जीरो सिंस वन माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो ऑल्सो. ओके, सो एक्स इक्वल टू वाई. तो इस तरीके से बेनेट फिक्स पॉइंट का थ्योरम का प्रूफ हुआ. और कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा. ओके, चलिए अब अगले एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया, टीएफआर में आया हुआ एक क्वेश्चन आपके लिए है. ओके, चलिए. सो एक्सरसाइज, लेट एफ एक्स टू एक्स बी एक्स इज कंप्लीट. ओके, कंप्लीट, कंप्लीट है.
be a map such that f to the power n is contraction किसी n के लिए, okay? Contraction for some n in the natural numbers so that f has a unique fixed point theorem. Sorry, f has a unique fixed point. ध्यान रखना फिक्स पॉइंट एफ कॉन्ट्रेक्शन नहीं भी हो सकता है, ओके? एफ टू द पावर एन कॉन्ट्रेक्शन है, मान लीजिए कि एफ की पावर 2025 कॉन्ट्रेक्शन है, ओके? सो देन यू हैव टू शो इट. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर थ्योरम जो आज हम करने वाले हैं. 9.3 आई थिंक 9.3 पेयर कैटेगरी थ्योरम, ओके? चलिए पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं. स्टेटमेंट ये है इसका, लेट un be the फैमिली, ये नेचुरल नंबर से, हाँ, be the family of open dense subsets of a complete metric space डेंस सबसेट आपको याद होगा, हम पीछे पढ़ के आए हैं, और ओपन तो आप जानते हैं, तो ओपन भी है और डेंस भी है, ओके? ओपन डेंस सबसेट ऑफ अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, देन दिस इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी. I mean to say not empty, more than that very, is also dense, okay? Also dense. तो आपके पास अगर फैमिली है ओपन डेंस सबसेट्स की, तो वो फिर क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन भी डेंस होगा, ओके? जैसे 2 3 के लिए तो आपने किया ही है, राइट? तो इनफाइनाइट फैमिली है तो भी वो डेंस होगा, ठीक है? तो ये प्रूव करने के लिए दूसरा एक होमवर्क है आपका, इसको प्रूव करना. यू इज ओपन डेंस if and only if its complement is closed and nowhere dense, ओके? सो ये प्रूव करेंगे, बहुत आसान है. क्लोज तो वैसे ही पता चल गया आपको, बस नोवेयर डेंस की आप डेफिनेशन जानते हैं. नोवेयर डेंस मींस क्लोजर हैज एम्प्टी इंटीरियर, ओके? सो चलिए इसको प्रूव करते हैं. ये इसका स्टेटमेंट है. प्रूफ प्रूफ कैसे करते हैं देखिए. सबसे पहले आप कोई भी पॉइंट पिक कर लीजिए, ठीक है? लेट एक्स से, देन सिंस u1 इज ओपन, इसमें यूज क्या करेंगे, इनकी डेंसनेस यूज करेंगे, और एक्जिम ऑफ चॉइस भी हम यूज करेंगे, ओके? सो क्योंकि वी विल पॉइंट पिक द पॉइंट्स, सो यू विल सी दैट सिंस u1 इज डेंस, राइट? डेंस सेट की डेफिनेशन क्या होती है, डेंस इन x. सो bxr, this is the ball centered at x with radius r will intersect u1, right? ये u1 को इंटरसेक्ट करेगी, है ना? क्योंकि ओपन डेंस सबसेट की डेफिनेशन क्या है, डेंस सबसेट की डेफिनेशन ये है कि एनी ओपन सेट इंटरसेक्ट्स इट, एनी ओपन बॉल इंटरसेक्ट्स इट. सो अब ये नॉन एम्प्टी भी है और ओपन भी है, राइट? सो नॉन एम्प्टी है, इज नॉट एम्प्टी एंड ओपन, ओके?
because intersection of two open sets is open. So let x1 pick R such that closed ball centered at x1 with radius r1 contained in bxr intersection u1 where r is less than 1 and greater than 0. ओके, ऐसा किया जा सकता है। देखो मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर ये ओपन है तो इसके अंदर का कोई पॉइंट उठाओ, नॉन एम्प्टी तो है ना, नॉन एम्प्टी है, ओपन है, तो इसके अंदर जो भी पॉइंट लेंगे वो इंटीरियर पॉइंट होगा। तो इतना तो आपको पता है कि एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी x1 पर सेंटर, रेडियस चलिए r1 है, और रेडियस को हम सफिशिएंटली स्मॉल चूज कर सकते हैं। ओके, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, तो सफिशिएंटली स्मॉल ले सकते हैं, तो इस रेंज में ले सकते हैं। अगर इसी रेंज में है ऑलरेडी तो इट्स ओके, नहीं है तो फिर कम रेडियस कर लीजिए। क्योंकि जब भी आपके पास कोई बॉल होती है, मान लीजिए आर रेडियस की, तो उससे छोटी रेडियस की सारी बॉल्स उसी के अंदर होती हैं, राइट, ये आप जानते हैं। एंड दूसरा, क्लोज्ड भी कर सकते हैं बॉल को, क्लोज्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे आपके पास कोई भी ओपन बॉल है ना, तो आप उससे छोटी रेडियस की बॉल लीजिए। ओके, छोटी रेडियस की जो आप बॉल लेंगे उससे, तो वो वाली क्लोज्ड बॉल क्या आ जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई ओपन बॉल इसके अंदर आ रही है पूरी की पूरी, तो उससे और छोटी रेडियस कर लीजिए, तो वो वाली क्लोज्ड बॉल क्या आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। सो वी कैन टेक क्लोज्ड बॉल। ओके, आई मीन यू शुड अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, नहीं तो फिर प्रूफ फॉलो नहीं कर पाएंगे। ओके, सो राइट नाउ, सिंस u2 is also dense, this b open ball, ये ओपन बॉल U2 को क्या करेगी, इंटरसेक्ट एंड ओपन, राइट, ओपन करेगी। सो पिक x2, अब वही हमने करना है जो हमने ऊपर किया, x2 फ्रॉम हेयर, कहां से, x1 r1 इंटरसेक्शन U2 सच दैट, इस प्रकार से करें कि इस पर एक क्लोज्ड बॉल centered, a closed ball centered in B with radius R2, it's contained in this one because this is open. Okay, इस तरीके से। अब यहां U3 आएगा, ओ सॉरी, U2 ही आएगा। ओके, तो for and R where R is less than 1/2 and greater than 0. Okay, so continuing, अब इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यूइंग द similar construction, we get a pair of sequences, right? A pair of sequences xn and rn which satisfy less than 1 by n greater than 0 such that क्या होगा, ये closed ball centered at xn rn is contained in the open ball centered at xn minus 1 with radius n minus 1 and this intersection un, right, for all n, right? So far it is clear. या ओ आई फॉरगॉट कि मैं आज अकेला हूँ। ओके, तो अब आप मतलब जब पढ़ रहे होंगे तो आप भी अकेले हो गए आज, है ना। सो कोई नहीं, तो आप यस सर बोल देना है, हाँ ठीक है। सो फॉर ऑल एन, राइट, ओके। सो द सीक्वेंस हमें ये मिल गया, सीक्वेंस एक्स एन इच कॉची, ओके, कॉची नोट, ये कॉची होगी, क्यों, बिकॉज देखो, बिकॉज एक्स एन कहाँ होगी आपके, किस में है, एक्स एन
इसमें है, राइट। देखो यहाँ पे इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, ओके, ये जो सारी क्लोज्ड बॉल है ना, ये इसके अंदर कंटेन है, ये इसके अंदर कंटेन है, आई मीन टू से ये क्लोज्ड बॉल ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ओके। ये जैसे Bx1 R1 Bx2 R2, इस तरीके से Bx3 R3, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, तो इस तरीके से सीक्वेंस चलेगी। जब भी आप कोई भी xn उठाएंगे, x3 उठाया, तो ये क्या होगा, उन सारी बॉल्स में होगा Bx2, आई मीन टू से Bxk Rk फॉर ऑल m लेस देन इक्वल टू 3, राइट, फॉर ऑल के। जैसे आप x से 100 उठाएंगे तो वो सभी में होगा Bxk Rk, k इज लेस देन इक्वल टू 100, राइट, इस सीक्वेंस की वजह से, राइट। ये सीक्वेंस सेटिस्फाई हो रही है, ऊपर देखो, ये इस वाले को देखो, ओके। तो xn आपने यहां से लिया तो वो सभी में है पीछे, ओके। सो यहां से लिखेंगे बिकॉज xn बिलोंग्स टू क्लोज्ड बॉल centered at xn with radius rm all m for all m less than equal to n, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन xn एंड xm क्या होगी, देखो, क्योंकि xn हर किसी बॉल में है और ये इसका सेंटर xm में है, तो इससे डिस्टेंस लेस देन rm होगी, राइट, लेस देन rm होगी या इक्वल टू rm होगी, क्लोज बॉल में है, बट rm इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/m, राइट। ये देखिए यहां पर, ओके, विच कन्वर्स टू विच टेंस टू 0 एच m कॉमा m टेंस टू इंफिनिटी, राइट। और जैसे ही m इंफिनिटी की ओर जाएगा तो n इंफिनिटी की ओर जा ही रहा है, ओके। तो इसका मतलब ये कॉची सीक्वेंस है। अब वही, जब भी हम कंप्लीट मेट्रिक स्पेस का हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ हमेशा कंस्ट्रक्शन होगा इसके प्रूफ्स में, आप देखेंगे एक कॉची सीक्वेंस का, ओके। जब भी आप, जैसे आपको प्रूफ याद करना हो तो क्या है, आप ये समझ लीजिए कि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है जैसे बेनेट फिक्स पॉइंट का थ्योरम, कि कंस्ट्रक्शन तो होगा कॉची सीक्वेंस का, क्योंकि कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। उसके बाद वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी वही फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट मेट्रिक स्पेसेस की थ्योरम्स हैं, तो दोनों में कंस्ट्रक्शन है कॉची सीक्वेंस का, राइट। अब ये जो पॉइंट आएगा ना, यही काम का होगा दोनों बार, ये वाला पॉइंट जहां पे कन्वर्ज करेगी। सो सिंस एक्स इज कंप्लीट, कंप्लीट, हमने एक्स जीरो यूज किया था, ऊपर एक्स किया था, तो मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ मैंने एक्स लिया था कि एक्स, तो एक्स नॉट लिखता हूँ, ओके। सो देयर एग्जिस्ट अ एक्स नॉट, देयर एग्जिस्ट अ एक्स नॉट belongs to x such that, तो जब आप प्रूफ लिख रहे हो एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, हाँ, सारी चीजें फॉर ऑल एन, कहीं पे कोई चीज मिस हो गई हो तो उसको भी आपने लिखना है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ लिखना आना चाहिए हमें। वी शुड नो द रिगरस प्रूफ राइटिंग, ओके। सो मैं हो सकता है कहीं पे कुछ मिस कर दूं, लेकिन आप नहीं करना। सो सच दैट देयर एग्जिस्ट एक्स जीरो सच दैट एक्स एन कन्वर्स टू एक्स जीरो, ओके। अब यहां पर से हमें ये दिखाना होगा कि ये एक्स जीरो क्यों सारे उसमें है करके, आई मीन टू से सारे यूएन में है, ठीक है। तो देखो, सो फॉर ईच के, राइट, एक्स एन, ये सीक्वेंस अगर आप लोगे, मतलब के ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ओके, इसकी टेल लोगे, एच सीक्वेंस इन कहाँ है, क्लोज सेट बी एक्स एन आर एन, राइट, नहीं बी एक्स के आर के में होगा, क्योंकि, हाँ, ओके। सो सी, देखो मैंने आपको बताया था ना ये इसको सेटिस्फाई करती है। जैसे आप x3 x4 लेंगे, वो सारे के सारे इस वाले में आएंगे, एक्स Bx3 R3 में, राइट। क्योंकि ये इस चेन को देखना, बस आप समझ जाएंगे, ओके, नीचे चेन लिखना, ये वाली चेन लिखना और फिर आप समझ जाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। सो
So x0 belongs to bxk rk फॉर ईच के। ठीक है, ऐसा क्यों होगा आप बताइए, बताइएगा, बताइए नहीं। तो फॉर ईच के बिलोंग्स टू एन, राइट, क्योंकि ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड बॉल क्लोज्ड होती है, ओके, और क्लोज्ड सबसेट कंप्लीट होता है हमेशा, मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। क्लोज सेट के सारे लिमिट पॉइंट उसके ही अंदर होते हैं, ओके। कंप्लीट की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है किसी क्लोज सेट की तो उसी के अंदर होगी, क्योंकि क्लोज सेट के लिमिट पॉइंट वही होते हैं। सो इसका मतलब हुआ, और ये क्या होता है, अभी आपने देखा था, कहाँ है ये, किसके अंदर कंटेन करता है, बी एक्स के माइनस वन आर के माइनस वन इंटरसेक्शन बढ़ के ना एक यू के, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास ये आ गया, राइट, ये जो एक्स लोट लिया था, फॉर ऑल के ट्रू है, ओके, इन नेचुरल नंबर। सो इसका मतलब क्या हुआ, सारे यूएन में आ गया, और सारी इन बॉल्स में आ गया, और ये सारी बॉल कहां से है, देखो बी एक्स आर के अंदर है, राइट। ये बॉल ऐसे बन रही थी ना सीक्वेंस, तो इसका मतलब x0 बिलोंग्स टू बी, बी एक्स आर इंटरसेक्शन, यहां पे फिर से एक इंटरसेक्शन आएगा यूएन, ओके, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये समझ गए होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूं। देखो ये कैसे आ गया, ये आसान है। फर्स्ट ऑफ x0 सारी बॉल्स में आ गया, राइट, तो सारी बॉल्स बी एक्स आर का ही सबसेट है, ओके। इस तरीके से चेन आई थी हमारे पास, और दूसरा यूके में भी आ गया, देखो हर किसी के लिए आ रहा है, तो हर U1 U2 इस सब में आ गया, तो उनके इंटरसेक्शन में भी आ गया, तो ओवरऑल इस इंटरसेक्शन में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बी एक्स आर ने, किसी भी ओपन बॉल ने इस सेट को इंटरसेक्ट किया, ओके। सो ये जो सेट होगा ये डेंस होगा, इज डेंस। एंड आपको भले ही अगर आप ये थ्योरम पहली बार देख रहे हैं तो साधारण सी लग सकती है, इसके इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ना, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आप इससे देखोगे। एक प्रॉब्लम जैसे आर इज अनकाउंटेबल भी आप इससे प्रूव कर सकते हैं, ओके, अभी करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, असाइनमेंट में भी वो रखूंगा। सो चलो, लेकिन कुछ एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वो क्या है, वो ये है कि इफ आप, वो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, हाँ, एक्स डी बी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस, अगर एक्स आपका क्या है, यूनियन है क्लोज्ड नोवेयर डेंस सबसेट का, क्लोज्ड नोवेयर डेंस सबसेट्स का, तो एटलीस्ट वन एफ एन हैज एम्प्टी इंटीरियर, ओके। ओ मैं कुछ शायद मैं गलत बोल दिया, एक मिनट, हाँ। ओ राइट, हाँ, नोवेयर डेंस सबसेट मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्लोज्ड सबसेट्स बोलना चाहिए, ओके, सॉरी, ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि फिर नोवेयर डेंस अगर मैंने पहले ही बोल दिया तो फिर ये प्रूफ क्या करना है, सारे है ना। तो ये सारे क्लोज सबसेट्स हैं, ओके। तो इनके पास एटलीस्ट एक के पास क्या होगा, एम्प्टी इंटीरियर होगा, ओके। तो ये आपने डिड्यूस करना है, नो नो नो, हैज नॉट
हैज नॉन एम्प्टी इंटीरियर। आई मीन टू से कि इनमें से कोई तो एक क्या होगा, वो सारे नोवेयर डेंस नहीं हो सकते। ओके, वो कैसे फॉलो होगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, सो क्लोज, अगर कोई क्लोज नोवेयर डेंस सबसेट है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होता है, ओपन डेंस सबसेट होता है। एंड इफ एंड ओनली इफ है ओपन डेंस सबसेट का कंप्लीमेंट क्लोज नोवेयर डेंस सबसेट। ओके, सो दैट इज, इसका मतलब है, अभी मैं समझाता हूं एक एक बात। हाँ देखो, दैट इज एक्स कैन नॉट बी यूनियन ऑफ closed nowhere dense subsets। इसका मतलब ये है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा हो गया तो आपको मैं दिखाता हूं, देखो वो अभी बेयर कैटेगरी थ्योरम से वो इक्विवेलेंट है दोनों स्टेटमेंट। तो मान लेते हैं ऐसा हो गया, पहले से मैं रिपीट कर रहा हूं सारा, ठीक है। पहली बात कि ओपन डेंस सबसेट का जो कंप्लीमेंट होगा वो क्लोज तो होगा और नो वेयर डेंस होगा, ठीक है। ये आप प्रूव करेंगे, आसान है। और अब ये स्टेटमेंट क्या है, अगर x इक्वल टू क्या है, यूनियन ऑफ क्लोज्ड सबसेट है, तो वो सारे के सारे नोवेयर डेंस नहीं हो सकते, उनमें से कम एक तो नोवेयर डेंस नहीं होगा। अगर नोवेयर डेंस नहीं होगा तो उसके पास फिर नॉन उस एम्प्टी इंटीरियर होना चाहिए। यहां पे ये नहीं बोलने की जरूरत है हाँ, कि उसके क्लोजर के पास नॉन एम्प्टी इंटीरियर होना चाहिए, क्योंकि क्लोज सेट का क्लोजर खुद ही वो होता है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, कहने का मतलब है उनमें से सारे के सारे नोवेयर डेंस नहीं हो सकते, एक तो एटलीस्ट नहीं होगा नोवेयर डेंस, नॉट नोवेयर डेंस होगा एक तो एटलीस्ट। ओके, सो मैं क्लियर करता हूं, देखो मान लो कि एक्स आपका क्या है, नोवेयर, लेट एक्स यूनियन है आपके नोवेयर डेंस क्लोज सबसेट का। तो आप यूनि इसका कंप्लीमेंट लीजिए दोनों साइड पे, तो इधर फाई आ जाएगा, दूसरी साइड क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ से, और एफ एन के कंप्लीमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या होंगे, ओपन डेंस सबसेट होंगे। तो हमें क्या मिल गया, ओपन डेंस सबसेट का इंटरसेक्शन फाई मिल गया। नहीं, वो नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि वो डेंस आना चाहिए था ऊपर बेयर कैटेगरी थ्योरम से, है ना। बेयर कैटेगरी थ्योरम तो यही कह रही थी कि जब भी आपके पास ओपन डेंस सबसेट्स होंगे उनका इंटरसेक्शन भी डेंस होगा। ओहो, आई मेड अ मिस्टेक। नो नो, नो मिस्टेक इज देयर, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, मैं सोच रहा था, मतलब जस्ट फॉरगेट दैट व्हाट आई वाज थिंकिंग, ओके, इट्स नथिंग टू टेल यू। सो समझ में आ गया ना इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कि, देखो मैं तीन बातें बोल देता हूँ, ये चीजें ध्यान में रखना। पहली, एक्स डी अगर आपका कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, अगर कोई भी कॉन्ट्रेक्शन मैप है एक्स से एक्स में, तो उसके पास एक फिक्स पॉइंट होगा, यूनिक होगा वो। ओके, एक चीज सीखी। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि बेयर कैटेगरी थ्योरम, बेयर कैटेगरी थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास काउंटेबल कलेक्शन है ओपन डेंस सबसेट का, तो उनका इंटरसेक्शन भी ओपन डेंस सबसेट होगा। ओके, उनका इंटरसेक्शन भी, सॉरी, डेंस सबसेट होगा, ओपन नहीं, क्योंकि ओपन होना जरूरी नहीं। ओके, तो वो डेंस होगा। हमने प्रूव किया ये पहला स्टेटमेंट, और उससे नीचे वाला ये फॉलो हो रहा है। ओके, कि एक्स कैन नॉट बी काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज्ड नोवेयर डेंस सबसेट्स। ठीक है, दो लाइन याद रखना कि इफ यू हैव काउंटेबल फैमिली ऑफ ओपन डेंस सबसेट्स देन इट्स इंटरसेक्शन इज आल्सो डेंस। एंड द सेकंड लाइन दैट एक्स कैन नॉट बी अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेसिस, कैन नॉट बी द यूनियन ऑफ क्लोज्ड नोवेयर डेंस सबसेट्स। ओके, बस इतना ही है बेयर कैटेगरी थ्योरम में। तो थोड़े से इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले कि आर इज अनकाउंटेबल, ये भी आप कर सकते हैं बेयर कैटेगरी थ्योरम से। आर इज अनकाउंटेबल, आर इज अनकाउंटेबल, ये प्रूफ भी हो सकता है बेयर कैटेगरी थ्योरम से। ठीक है, कैसे, आर इज अनकाउंटेबल, इसको ऐसे करेंगे, मान लो आर काउंटेबल है, तो फिर क्या होगा, आर काउंटेबल है, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो आर को, यूनियन एन बिलोंग्स टू एन, एक्स एन, और सारे सिंगलटन क्लोज्ड होते हैं।
है ना, आइसोलेटेड होते नहीं, तो ये क्लोज्ड नोवेयर डेंस सबसेट्स हैं, डेंस सबसेट्स, राइट, बिकॉज ये ओपन नहीं, इनके क्लोजर का इंटीरियर लेंगे, क्लोजर तो यही आएगा, इंटीरियर लेंगे तो फाई आएगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होते हैं आर के कोई भी पॉइंट्स। ओके, सो दिस मींस अगर ऐसा है तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, समझे, कॉन्ट्राडिक्शन टू बेयर कैटेगरी थ्योरम, क्योंकि बेयर कैटेगरी थ्योरम तो बोलती है कि कोई भी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस हो ही नहीं सकता काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज्ड नोवेयर डेंस सबसेट्स, राइट। सो अगर आप जब भी ऐसा लेंगे ना, ये हमेशा नॉन इक्वली आएगा, क्लियर आई थिंक, राइट। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन फील फ्री टू आस्क, ओके। अब पेन भी काम नहीं कर रही है, अच्छा कर रही। ओके, अनदर वन, अनदर एप्लीकेशन एक्सरसाइज, अ countable complete metric space, a countable complete metric space has a fixed point, fixed point, okay, has a has an isolated point, sorry, isolated point। वो कैसे करेंगे, वो करेंगे इफ, देखो, इफ नो पॉइंट इज आइसोलेटेड, कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड ना हो, इज आइसोलेटेड, तो क्या होगा, तो होगा ये कि इज नॉट ओपन, ओके, नॉट ओपन, दिस मीन्स क्लोज तो होता ही है कोई भी फाइनाइट सेट, ओके, फॉर ईच आई, मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, सिंगलटन कोई भी इज नॉट ओपन, राइट। आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब भी ये होता है कि सिंगलटन एक्स ओपन है, राइट, नॉट ओपन, दिस इंप्लाइज इसके इंटीरियर का क्लोजर क्या होगा, ये इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एक्स, दिस इक्वल टू फाइव, इसका मतलब ये नोवेयर डेंस सबसेट है, ओके, इज nowhere dense subset, ओके। एक्स, अब ये काउंटेबल है, तो हम एक्स को क्या लिख पाएंगे, इस तरीके से यूनियन लिख पाएंगे ना सबका, क्योंकि काउंटेबल है तो सारी सीक्वेंस, सारे पॉइंट्स को काउंट कर सकते हैं उसके, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आएगा बेयर कैटेगरी थ्योरम के लिए, ओके, कॉन्ट्राडिक्शन, वायलेशन ऑफ बेयर कैटेगरी थ्योरम, आई मीन वायलेट्स बीसीटी, ओके। तो इसलिए कोई भी काउंटेबल कंप्लीट मेट्रिक स्पेस के पास एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा, और उसको आप दूसरे टर्म्स में भी कर सकते हैं, ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, अगर जो पहला स्टेटमेंट किया था हमने, ओके, एक्स आई ले लो, क्योंकि अगर एक्स काउंटेबल है तो ऐसा कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, राइट। तो आप ध्यान से देखना, अगर ये सारे ओपन हो गए, सारे के सारे ओपन हो गए, मतलब सबका सबका क्लोजर लो, आई मीन टू से, ओके, सबका क्लोजर अगर एक्स ही हुआ, ठीक है, अगर सभी का क्लोजर एक्स हुआ फॉर ईच आई, तो ये क्या हो जाएगा फिर, सारे सेट्स ओपन डेंस हो जाएंगे, राइट, फिर उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ऐसे करके देखेंगे उनके इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा, फिर ये आपका होमवर्क है, मतलब दूसरा तरीका है करने का, ओके। तो इसका मतलब एक तो सेट इनमें ऐसा होना चाहिए जो जिसका क्लोजर यही आ जाए, सेट ही आ जाए, मतलब क्योंकि इसके दो ही क्लोजर पॉसिबल हैं, एक तो ये और एक एक्स, तो यही आएगा, तो इसका मतलब सिंगलटन ओपन हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बेयर कैटेगरी थ्योरम और बेनेक फिक्स पॉइंट थ्योरम, इसको ध्यान से सीख लेंगे, मैंने जैसे कि कहा बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम से हैं ये, सही से समझ लेंगे, फिर इनके एप्लीकेशन ही आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो वहां आप कर पाएंगे, ओके। चलिए, आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और भी बताना है। तो आज कोई पूछने वाला तो है नहीं, कल ही पूछना फिर, ठीक है। चलो बाय बाय, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे।